باد توحید کے متوالوں، شمع نبوت کے پروانوں، غوث اعظم کے چاہنے والوں اور ماننے والوں، خواجہ غریب نواز کے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اللہ نے جس کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا فرمایا. اگر اللہ اپنے نبی کو پیدا نہیں کرتا تو دنیا میں کسی چیز کو پیدا نہیں فرماتا. ساری کائنات کو مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا فرمایا. اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ اقدس میں ایک مرتبہ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ یہاں کے لوگوں میں جذبہ، دین کا جذبہ جو ہونا چاہیے وہ معلوم ہو رہا ہے. یہاں کے لوگوں میں ہے، جوانوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں بھی ہے. سمجھ رہے؟ اور ہمارے مبلغ حضرات کی یہ محنت ہے کہ آج ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں دعوت اسلامی کا دھوم مچ رہا ہے، ڈنکا بج رہا ہے. یہ محنت کا نتیجہ ہے. شاعر کہتے ہیں نہ کر تقدیر پر شکوا، مقدر آزماتا جا، ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا. سبحان اللہ. اور کہتے ہیں لٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو، لٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. پھول کا باغان ایک ہی ساتھ نہیں ہوتا ہے. پہلے بیج کو زمین پہ بو دیا جاتا ہے، پھر کچھ مہینوں تک انتظار کیا جاتا ہے، تب جا کر کے پھول کا باغان ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں شاعر لٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتی ہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. حضرات محترم، بڑی خوشی کی بات ہے آپ حضرات میرے ساتھ دیتے رہے. میں آپ حضرات کے سامنے بالخصوص کچھ خاص باتیں آپ کے سامنے میں پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ آپ کی ایک بات کہہ کے آپ کے ذہن کو میں صاف کر دوں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمامی حضرات درود تو نہیں پڑھے، کچھ لوگ پڑھے کچھ لوگ خاموش رہے. اور ہمارا عقیدہ ہے ہم نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں، اور جب میدان قیامت قائم کیا جائے گا تو ہم نبی کے چادر کے نیچے ہوں گے. جتنے بھی عاشق رسول ہندوستان کے ہیں سارے نبی کے چادر کے نیچے ہوں گے، سارے نبی کے دامن کے نیچے ہوں گے. بلکہ ہندوستان ہی کے عاشق رسول نہیں، دنیا کے گوشے گوشے اور کونے کونے میں جہاں بھی عاشق رسول ہے سب نبی کے دامن کے نیچے ہوں گے. اگر آپ سے کوئی اعتراض کر دے، آپ سے کوئی سوال کر دے کہ آپ کے نبی کا دامن کتنا بڑا ہے، آپ کے رسول کا چادر کتنا بڑا ہے، کہ سارے عاشق رسول ایک چادر کے نیچے آ جائیں گے. شادی میں ایک شامیانہ لٹکایا جاتا ہے، اس میں 200 500 1000 آدمی آتا ہے، مگر دنیا میں عاشق رسول کروڑوں ہیں، بے حساب ہے، جس کی کوئی گنتی نہیں ہے. اگر آپ سے سوال کر دے سارے عاشق رسول نبی کے دامن کے نیچے کیسے آ سکتے ہیں، نبی کے دامن کے نیچے کیسے آئیں گے، تو میں آپ کو ایک جواب دے رہا ہوں. دنیا کے کسی بھی گستاخ رسول کے سامنے یہ نقطہ پیش کر دیجئے، ان کے لیے جواب بن جائے گا. ان سے کہے کہ آپ نے کبھی اجمیر کے سرزمین پہ کیا ہے؟ جب اجمیر کے سرزمین پہ خواجہ غریب نواز ہندوستان کے سرزمین پہ آئے اور آنے کے بعد اجمیر کے سرزمین پہ گئے، جانے کے بعد وہاں پر بیٹھے اور اپنے مرید قطب الدین بختیار سے فرمایا بیٹا قطب الدین اس کٹورے کو لے لو، لینے کے بعد انا ساگر کے پاس چلا جاؤ اور انا ساگر سے کہو کہ 1 کٹورا پانی لینا ہے، یعنی اے انا ساگر تو
तुझे ख्वाजा गरीब नवाज ने बुला रहा है। ऐ अना सागर, तुझे ख्वाजा गरीब नवाज बुला रहे हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार ये नहीं कहे, ये तो सवाल कर सकते थे, हुजूर ये कटोरे में अना सागर कैसे आ सकता है? वो कुतुबुद्दीन बख्तियार जानते थे मेरे ख्वाजा ने जो कह दिया है वो कह दिया है। अगर अना सागर को कटोरे में समाना चाहते हैं तो ख्वाजा गरीब नवाज समा सकते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, बेटा कुतुबुद्दीन अना सागर के पास चला जाओ और अना सागर से कहो कि ऐ अना सागर, तुझे ख्वाजा गरीब नवाज ने बुला रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज बुला रहे हैं। इतना ही कहना था। मुरीदे खास कुतुबुद्दीन बख्तियार जाते हैं। कहां जाते हैं? अना सागर के पास जाते हैं। आपसे अगर कोई सवाल करे कि चादर के नीचे, नबी के दामन के नीचे इतने आशिक रसूल कैसे आ सकते हैं? जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अना सागर के पास गए और जाने के बाद अना सागर से कहा, ऐ अना सागर, तुझे ख्वाजा ख्वाजगान ने बुलाया है। इतना कहना था कि पूरा अना सागर का पानी एक प्याले में सिमट आता है। मैं कहना चाहता हूँ, अजमेर के ख्वाजा का जब ये आलम है तो मदीने के राजा का आलम क्या होगा? जब उनके कथा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? हज़रात मोहतरम, अब अगर कोई आपसे सवाल करे कि नबी के दामन के नीचे इतने आशिक रसूल कैसे आएगी, तो एक कटोरे में पूरा अना सागर कैसे आ गया? और ये मेरे नबी नहीं बल्कि मेरे नबी के गुलाम के गुलाम के गुलाम का ये हाल है, तो मेरे आका का हाल क्या होगा? बस ये मुझे नुक्ता आपको देना था। मैंने आयत करीमा की तिलावत का सर्फ हासिल किया। यौम युक्शफु अन साक़, जब कयामत कायम किया जाएगा ना, ये पिंडली खोल दी जाएगी, ये पिंडली खोल दी जाएगी। यौम युक्शफु अन साक़, अल्लाह फरमाता है जब कयामत कायम किया जाएगा तो ये पिंडली खोल दी जाएगी। और युदऔना इला सुजूद, अल्लाह फरमाता है सारे लोगों को सजदे की तरफ बुलाया जाएगा। सारे लोगों को, हजरत आदम से लेकर कयामत तक जितने लोग हैं, सारे लोगों को सजदे की तरफ बुलाया जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे सजदा करना चाहेंगे मगर सजदा करने नहीं पाएंगे। कुरान फरमाता है फला यस्ततीऊन, उसे ताकत ही नहीं होगी कि वो सजदा कर सकेगा। कुछ लोग तो सजदे में झुकना चाहेंगे मगर झुक जाएंगे कयामत के दिन जब अल्लाह सजदा करने का हुक्म देगा। कुछ लोग सजदा करना चाहेंगे मगर उनकी पीठ सीधी हो जाएगी, वो झुकना चाहेगा मगर झुकने नहीं पाएगा। वो कौन लोग झुकने नहीं पाएगा? जिन्होंने मस्जिदों को आबाद नहीं किया है, जिन्होंने कभी खुदा की बारगाह में झुका नहीं है, जिन्होंने कभी सजदा नहीं किया है, नमाज नहीं पढ़ा है, मस्जिदों को वीरान करके रखा है, मस्जिदों में आकर के आबाद नहीं किया है, वो इंसान सजदे में झुकना चाहेगा मगर झुकने नहीं पाएगा। कुरान फरमाता है फला यस्ततीऊन, उसे ताकत नहीं होगी कि वो झुकेगा। जब झुकने नहीं पाएगा तो क्या होगा? खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम जिल्ला, अल्लाह फरमाता है उसकी निगाहें शर्म के मारे झुक जाएगी और उस पर जिल्लत छाई हुई होगी। इंसान जब झुकना चाहेगा, जब झुकने नहीं पाएगा, इसलिए कि दुनिया में तो झुका नहीं है, दुनिया में सजदा किया नहीं है, तो कयामत में भी अल्लाह झुकने का हुक्म देगा। मगर कुछ बंदे तो झुक जाएंगे जिन्होंने दुनिया में सजदा किया है, जिन्होंने दुनिया में सजदा नहीं किया है, झुकने की कोशिश करेगा मगर झुकने नहीं पाएगा, तो उनकी निगाहें नीची हो जाएगी, जिल्लत छाई हुई होगी। आम बात है, कोई मुजरिम को कोर्ट में पेश किया जाता है, अगर गलती उनकी होती है तो निगाहें झुक जाती है। ये तो दुनिया का मामला है, वो तो अहकमुल हाकिमीन के बारगाह होंगे, हजरत आदम से लेकर कयामत तक सारे लोग रहेंगे, तो वो झुकेंगे कैसे नहीं? और झुकने नहीं पाएंगे तो शर्म के मारे निगाहें झुक जाएंगी। अल्लाह फरमाता है वो कद कानू युदऔना इला सुजूद, ऐसा भी नहीं कि इन्हें दुनिया में बुलाया नहीं जाता था, इसको दुनिया में बुलाया जाता था। मस्जिदों में 5 वक्त अजान होती थी मगर ये इंसान अजान सुनने के बाद भी दस से मस्तक नहीं होता था, अपने काम में लगा रहता था, अपने काम करते रहता था। मस्जिदों में 5 वक्त इसको बुलाया जाता था, ये इंसान कभी मस्जिद जाता नहीं था।
इसको तो बुलाया जाता था, ये इंसान जाता नहीं था मस्जिद। ये इंसान जब मस्जिद नहीं जाता था, ये करता क्या था, ये था कैसा? कुरान फरमाता वो हम सालिमून, ये सही सालिम था, इनके जिस्म पे खून दौड़ता था, इनकी जवानी थी, सारे दुनिया के काम करते थे, मगर नमाज के वक्त में ये मस्जिद नहीं जाता था। नहीं जाता था तो क्या करता था? अदाउस सलात, नमाज को ज़ाय कर देता था। मैं सारी कुरान की बात बोल रहा हूँ। अदाउस सलात ही क़यामत के दिन अल्लाह बोलेगा, अल्लाह फरमाएगा, कुरान पाक की बात है, अदाउस सलात, नमाज को छोड़ देता था। और करता क्या था? वत्तबउश शहवात, दुनिया के ख्वाहिशात के पीछे लगा रहता था। एक मंजिला हो गया तो 2 मंजिला बनाएंगे, 2 मंजिला हो गया तो 3 मंजिला बनाएंगे, और 3 मंजिला हो गया तो 4था मंजिला का इंतजाम कर रहे हैं। बाइक है तो 4 चक्के का इंतजाम हो रहा है। वत्तबउश शहवात, दुनिया के ख्वाहिशात के पीछे लगा रहता था। तो फसौफ यल्कौना गय्या, वो इंसान बेनमाजी को गई में डाल दिया जाएगा, जहन्नम में। अल्लाहु अकबर। अब कहेंगे गए क्या है? कुरान तो फरमा रहा है कि वो इंसान को जो दुनिया के ख्वाहिशात के पीछे रहता था, नमाज में कभी आता नहीं था, अल्लाह की बारगाह में सजदा नहीं करता था, तो फसौफ यल्कौना गय्या, वो इंसान को गए में डाल दिया जाएगा। गए क्या है? गए जहन्नम में एक वादी का नाम है गए। उस वादी, जहन्नम भी उससे पनाह मांगती है, जहन्नम भी उससे पनाह मांगती है। उसमें क्या है? पानी नहीं है, उसमें पीप और खून से वो नदी भरा हुआ है। उस नदी में बेनमाजी को डाल दिया जाएगा। जब डाल दिया जाएगा, वो बेनमाजी चिल्लाएगा, वो बेनमाजी आरज़ू कहेगा, और परवरदिगार इस गई की बदबू मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है, परवरदिगार इस गई से मुझे निकाल दिया जाए। तो फरिश्ते कहेंगे, ऐ इंसान दुनिया में क्या करता था? वो बेनमाजी कहेगा, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए मेरा ये हाल है। कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजी नहीं थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अज़ान तो होती थी हमारी मस्जिद में, हमारी कान तक अज़ान पहुंच रही होती, मगर हमने टस से मस्तक नहीं हुआ, हमने अपने चेहरे को कभी मस्जिद की तरफ फेरा नहीं। वलम नको, कालू लम नको मिनल मुसल्लीन, और आगे अल्लाह फरमाता है वलम नको नुत्इमुल मिस्कीन, और हमारा हाल ये था, हम मालदार थे, हमारे पास पैसा भी था, हमारे पास दौलत भी रहने के बावजूद हम कभी मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिलाया, हमने गरीबों का कभी ख्याल भी नहीं किया, इसलिए हम गई में आज डूब रहे हैं। वलम नको नुत्इमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूदु मअल खाइदीन। अल्लाह फरमाता है कि वो इंसान जहन्नमी जो गई में डूबेगा, वो कहेगा कि हम दुनिया में बेहुदा पकने वालों के साथ बेहुदा पकते थे, कभी आलिम के सोहबत में रहते नहीं थे। वो गुटखा खाने वाला इंसान, उसके साथ हम घूमते थे। बेहुदा पकने वाला इंसान, शराब पीने वाला इंसान, उसके साथ हम 24 घंटा घूमते थे। कभी हम नमाजी इंसान के साथ धुआं नहीं करते थे। वो कुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, बेहुदा पकने वालों के साथ हम बेहुदा पकते थे। आज देखिए आप उलमा के साथ कितने लोग हैं, नेक लोगों के साथ लोग नहीं है। बुरे लोगों के साथ अगर नेक महफिल में बुलाया जाए, 8 बजे टाइम दिया जाए तो 9 बजे तक नहीं पहुंचता है लोग। मगर कोई कहीं पर थिएटर का प्रोग्राम हो, डांस का प्रोग्राम हो, लड़कियों की कवाली का प्रोग्राम हो, तो टाइम 8 बजे हो तो 7 बजे जाकर के पहले बैठे रहते हैं। हाल ये है, हमारा हाल ये है। वो कुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, बेहुदा पकने वालों के साथ हम बेहुदा पकते थे। वो कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, अल्लाह फरमाता है वो इंसान कहेगा कि मेरे पास कोई आलिम समझाने आता था, कोई दीन की बात बताता, तो उस दिन को हम झुठला देते थे और ये बोलते थे कि जब मरेंगे तब देखा जाएगा। आज तो हाल यही है ना, लोग यही कह रहे हैं कि मरेंगे तो देखा जाएगा। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है तो वो ऐसा नहीं कहता है, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं कहते हैं कि मरेंगे तो देखा जाएगा। वो कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन,
हत्ता आतानल यकीन, वो गई में डूबने वाला इंसान कहेगा यहाँ तक कि हमारी मौत आ गई और उस दुनिया को हमने छोड़ दिया, हमारे पास वक्त भी नहीं बचा कि हम कुछ इबादत कर सकें। हज़रात, हमारा हाल क्या है? फिर आगे अल्लाह फरमाता है साला साइलुम बिअदाबिन वाक़ी, पूछने वाला पूछता है, सवाल करने वाला सवाल करता है, आप भी सवाल करते हैं कयामत कब कायम किया जाएगा। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कयामत 1700 के दरमियान, बाज़ उलूम से मुझे पता चल रहा है कि 1700 के दरमियान कयामत कायम हो जाएगा, उलूम से पता चल रहा है। साला साइलुम बिअदाबिन वाक़ी, पूछने वाला पूछता है अजाब कब वाक़े किया जाएगा, कयामत कब कायम किया जाएगा। और अल्लाह फरमाता है लैसा लहू दाफी, जब कयामत कायम किया जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि कयामत को रोक दे, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि कयामत को रोक दे। लैसा लहू दाफी। और अल्लाह फरमाता है मिनल्लाहि दिल मारिज, मिनल्लाह, ये जो कयामत कायम होंगे ना, ये कयामत कायम किया जाएगा तो कोई इंसान की तरफ से ये मामला नहीं, ये मिनल्लाह, ये अल्लाह के जानिब से होगा। और दिल मारिज, ये बहुत ही भयानक होगा, बहुत ही बुलंद कयामत कायम किया जाएगा। मिनल्लाहि दिल मारिज तारजुल मलाइकतु वरूह, जिसके तरफ फरिश्ते और जिब्रील अमीन रुजू करते हैं, फरिश्ते और जिब्रील अमीन रुजू करते हैं। मैं इसलिए ये सारी बातें बता रहा हूँ कि लोग मौत को भूल चुके हैं। दुनिया के लालच में हमें मरना है, हमें याद नहीं है, बस हमें दुनिया कमाना है, यही याद है। इसीलिए मैं इस बातों को आपको बता रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है आज का दिन कितना है? 12 घंटे का दिन है। रात और दिन को मिला लिया जाए तो 24 घंटे का दिन है, मगर कयामत का दिन कितना बड़ा दिन होगा? कुरान फरमाता है फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, 50,000 बरस का एक दिन होगा कयामत का। अल्लाहु अकबर, कितने हजार बरस? फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, 50,000 बरस का एक दिन होगा। जो हमने जिंदगी में किया है, हमारे अमाल का जो हिसाब होगा, वो सारे हिसाब 50,000 बरस का जो दिन होगा हमको देना पड़ेगा। फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। अल्लाह फरमाता है फस्बिर सब्रन जमीला, ऐ ईमान वालों, ऐ सब्र करने वालों, ईमान वालों से अल्लाह फरमाता है खूब खूब सब्र करो, यानी अच्छा अमल करो। ऐ ईमान वालों, उस दिन को याद करो और अच्छा अमल करो। इन्नहुम यरौनहु बईदा, जो कुरान पर ईमान नहीं रखता, नबी को नहीं मानता, कयामत के दिन पर ईमान नहीं रखता, अलबत्ता जो मुसलमान नहीं है वो सोचते हैं कि हमें मर जाना है, गल जाना है, खत्म हो जाना है, उसका अकीदा है। कुरान फरमाता है वनराहु इन्नहुम यरौनहु बईदा वनराहु करीबा। और जो कुरान पर ईमान रखता है, जो मुसलमान है, जो मोमिन है, उनका अकीदा है कि अनकरीब हमारा हिसाब होगा, हमें हिसाब देना पड़ेगा। हमने दुनिया में क्या किया, दुनिया में हमारे आमाल कैसे थे, ये सारे चीजों का हमें कयामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। और आगे अल्लाह फरमाता है ये जो दुनिया आप देख रहे हैं ना, ये हम सबको भी फना होना है। ये जो ऊपर आसमान देख रहे हैं, ये आसमान कितना मजबूत है कि जब से दुनिया बनाया गया है तब से ये आसमान है और कोई पिलर नहीं है। आप बंगाल में जाए तो कोई पिलर नहीं पाएंगे, आप गुजरात में जाए तो कोई पिलर नहीं पाएंगे, आप मुंबई में जाए तो आसमान में कोई पिलर नहीं है। दुनिया के सारे ममालिक में आप चक्कर लगा ले तो कहीं पर पिलर नहीं है, मगर ये आसमान कब तक टिका हुआ है? मगर जब कयामत कायम किया जाएगा, अल्लाह फरमाता है यौमा तकुनु समाउ कल मुहले, ये आसमान पिघले हुए चांदी की तरह हो जाएंगे। आसमान पिघले हुए चांदी की तरह हो जाएंगे। सोनार जो चांदी को पिघलाता है तो जैसे करता है वैसे होता है। यौमा तकुनु समाउ कल मुहले, ये आसमान पिघले हुए चांदी की तरह हो जाएंगे। और अल्लाह फरमाता है वो तकुनुल जिबालु कल इहने, और पहाड़ रुए की तरह हो जाएंगे, पहाड़ रुए की तरह हो जाएंगे। अल्लाह ने जब जमीन को पैदा किया, जमीन डगमगा रही थी, जमीन हिल रही थी,
फरिश्तों ने शिकायत की, परवरदिगार ये जमीन तो मजबूत नहीं है, ये जमीन तो हिल रही है। तो अल्लाह ने कील ठोक दिया और पहाड़ों को बना दिया, पहाड़ों को तैयार किया ताकि जमीन मजबूत हो जाए। ये पहाड़ कयामत के दिन रुए की तरह हो जाएंगे, वो तकुनुल जिबालु कल इहने, ये पहाड़ रुए की तरह उड़ेंगे आसमान में। और आज का हाल क्या है जानते हैं? कोई बाप को मार दे तो बेटा बदला लेने जाता है, भाई को मार दे तो भाई बदला लेने जाता है, दोस्त को कोई मारे तो दोस्त बदला लेने जाता है, बेटा को मारे तो बाप जाता है। यानी कोई रिश्तेदार अगर उसको दर्द है तो कोई किसी को मार दे तो बदला लेने जाता है। मगर कुरान फरमाता है वला यसअलु हमीमुन हमीमा, कयामत के दिन कोई दोस्त किसी दोस्त को नहीं पूछेगा। अल्लाह, वला यसअलु हमीमुन हमीमा। आज मैं सुभान अल्लाह वाली तकरीर को नहीं कर रहा हूं कि आपका जोश आ जाए, जरा सोचने वाली तकरीर कर रहा हूं। कयामत का दिन जब होगा, अल्लाह फरमाता है वला यसअलु हमीमुन हमीमा, कयामत के दिन कोई दोस्त किसी दोस्त को नहीं पूछेगा। और युबशरूनहुम युअद्दुल मुजरिम, जो इंसान मुजरिम होगा, जो इंसान गुनहगार होगा, जो इंसान दुनिया में अच्छा अमल नहीं किया है, युबशरूनहुम युअद्दुल मुजरिम लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनी व साहिबतिही व अखी व फसीलतिही अल्लती तुमी व मन फिल अर्दि जमीआ। अल्लाह फरमाता है वो मुजरिम कयामत के दिन आरज़ू करेगा, मौला आज के दिन मेरे बाप को ले लो, मुझे छोड़ दो, मेरे भाई को ले लो परवरदिगार, मुझे छोड़ दो, मेरे बीवी को ले लिया जाए परवरदिगार, मुझे छोड़ दिया जाए, हमारे औलादों को जहन्नम में कर दो, सिर्फ मुझे छोड़ दो, दुनिया में जितनी चीजें हैं सारे चीजों को ले लो परवरदिगार, मुझे छोड़ दिया जाए। कुरान फरमाता है कल्ला इन्नहा लज़ा, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा कि किसी के बदले में किसी को छोड़ दिया। अल्लाहु अकबर, ये कयामत का दिन है। वला यसअलु हमीमुन हमीमा, जब जहन्नमी और जन्नती का फैसला हो जाएगा, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, सारे लोग अपना अपना हिसाब हो जाएगा। तो अल्लाह फरमाएगा फरिश्ते जिसके दिल में राई के दाना के बराबर भी ईमान है उसे जहन्नम से निकाल। अब सुनिए, वो तो सुन लिए ना, अब इसको सुनिए। अल्लाह फरमाएगा जहन्नमी जहन्नम में चला जाएगा, बुखारी की हदीस बोल रहा हूं, जन्नती जन्नत में चला जाएगा। और जिन्होंने इबादत तो नहीं किया है, बंदगी तो नहीं किया है, मगर ईमान को मजबूत रखा है, मसलक आला हजरत के परचम को थाम करके रखा है, बंदा नमाज नहीं पढ़ा है, गुनहगार तो है, तो जहन्नमी जहन्नम में चला जाएगा, जन्नती जन्नत में चला जाएगा। जब ये सारे लोग चले जाएंगे ना, तो अल्लाह फरमाएगा मेरे फरिश्ते जिसके दिल में राई के दाना के बराबर भी ईमान है उसे जहन्नम से निकाल। तो फरिश्ते अर्ज करेंगे परवरदिगार उसको कैसे पहचाना जाएगा, उसको कैसे पहचाना जाएगा? अगर दुनिया में एक भी सजदा किया है तो उसकी पेशानी चमकेंगे, उसके पेशानी चमकेंगे। अल्लाह फरमाएगा फरिश्ते वो मेरा बंदा जिसके दिल में राई के दाना के बराबर भी ईमान है, उसके पेशानी को देखो और पहचान लो, उसको जहन्नम से निकालो। जब जहन्नम से उस बंदे को निकाला जाएगा तो वो इंसान जलकर कोयला की तरह काला हो गया होगा, कोयले की तरह काला हो गया होगा वो इंसान जहन्नम में जल करके। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाएगा फरिश्ते किसी आबे हयात के पानी इस पर छिड़को। आबे हयात का पानी जब उस इंसान पर छिड़का जाएगा वो इंसान तरोताजा हो जाएगा। जैसे चना को कोई चीज को पानी में भिगा देते हैं तो सुबह फूल जाता है, वो इंसान जहन्नमी जब कोयले की तरह काला हो जाएगा जहन्नमी जल करके, तो आबे हयात की पानी उस पर छिड़का जाएगा तो इंसान तरोताजा हो जाएगा। और जब तरोताजा होगा ना, अल्लाह फरमाएगा फरिश्ते इसको जहन्नम से तो निकाल लिए मगर जहन्नम के दरवाजे के पास इसको बैठा और मुंह को जहन्नम की तरफ घुमा दो। एक तरफ जहन्नम रहेगा, दूसरी तरफ जन्नत। वो इंसान जहन्नमी का मुंह जहन्नम की तरफ घुमा रहेगा। वो इंसान अर्ज करेगा जहन्नमी परवरदिगार
یہ جہنم کی بدبو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، پروردگار میں جنت میں جانا نہیں چاہتا ہوں، بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ میرا منہ صرف جہنم کی طرف سے جنت کی طرف کر دیا جائے۔ تو اللہ کہے گا فرشتے میرے بندے کے منہ کو جہنم کی طرف سے جنت کی طرف کر دو۔ تو اللہ کا جب حکم ہوگا تو اللہ اس جہنمی کے منہ کو جہنم کی طرف سے جنت کی طرف کر دے۔ جب جنت کی طرف دیکھے گا اور اللہ اس سے فرمائے گا اس کے بعد اور کچھ نہیں مانگے گا، اگر تیرا منہ میں گھما دوں تو بندہ کہے گا پروردگار اس کے بعد اور کچھ نہیں مانگوں گا، صرف میرا منہ جہنم کی طرف سے جنت کی طرف گھما دیا جائے۔ تو فرشتے گھما دیں گے، جب جنتیوں کو دیکھے گا نا تو اس کے دل میں پھر لالچ سا پیدا ہو گیا، پھر کچھ سال تک ویسے جہنم کے دروازے کے پاس رہے گا، پھر عرض کرے گا پروردگار میں جنت میں جانا نہیں چاہتا ہوں، میری ایک خواہش ہے کہ مجھے جنت کے دروازے کے پاس کر دیا جائے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو پہلے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں کچھ نہیں مانگوں گا؟ کہے گا بندہ مولا وعدہ تو کیا تھا، بس ایک وعدہ اور کر لیتا ہوں، اس کے بعد اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ فرمائے گا فرشتے اس بندے کو جنت کے دروازے کے پاس کر دو۔ فرشتے نے جا کر کے جنت کے دروازے کے پاس کر، جب دروازے کے پاس ہوں گے نا تو جنتیوں کو پھر دیکھے گا تو پھر دل میں لالچ پیدا ہو جائے گا اور کہے گا پروردگار میری ایک خواہش ہے کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو اس سے پہلے وعدہ نہیں کیا تھا کہ کچھ نہیں مانگوں گا؟ بندہ کہے گا پروردگار وعدہ تو کیا تھا، بس ایک میری خواہش ہے جس کو پورا کر دیا جائے۔ اللہ جب تک چاہے گا اس کو وہی رکھے گا، پھر اللہ فرمائے گا فرشتے میرے بندے کو جنت میں داخل کر دے، بندہ جہنم میں جنت سے داخل ہو جائے۔ اور اللہ پوچھے گا میرے بندے اور کچھ تو چاہتا ہے؟ کہے گا نہیں مولا میری ساری آرزو پوری۔ تو یہ جہنمی جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو دل میں، تو وہ کیا ہوگا؟ جہنم میں رہے گا۔ جو دنیا میں گناہ کیا ہے، جو بدعمال کیا ہے، اس کا سزا ہونے کے بعد تب جنت میں جائے گا، مگر دھلائی ہونے کے بعد تب جنت میں جائے گا۔ حضرات محترم یہ ایمان کی بات ہے۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے معلوم ہے؟ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ منتقل کا اگر غریب سے غریب انسان ہے، ایمان کی اہمیت کیا ہے میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایمان کی اہمیت یہ ہے کہ ایک غریب سے غریب انسان، وہ رکشہ اگر چلاتا ہے، غریب انسان ہے، ہندوستان کا سب سے بڑا مالدار مکیش امبانی ہے، وہ اگر چاہے تو یہاں سے لے کر حیدرآباد تک سونے کا دیوار بنا سکتا ہے، مگر دنیا میں سب سے بڑا مالدار بل گیٹس ہے، وہ اگر چاہے تو یہاں سے لے کر بنگلور تک سونے کا دیوار بنا سکتا ہے۔ وہ اگر بل گیٹس اگر کہے یہاں کے غریب انسان سے اے غریب انسان تمہارا ایمان مجھے دے دو، میری پوری دولت لے لو، اگر وہ پکا مومن ہوگا تو وہ کہے گا اے بل گیٹس تمہاری دولت تم کو مبارک ہو، میرا ایمان مجھے مبارک ہو۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے۔ آج ہم بات کرتے کرتے ایمان کو کھو بیٹھتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں، علم نہیں ہے تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ایمان کیا ہے۔ حضرات محترم میں آپ کو اور بھی بتاتا چلوں، جب قیامت کا میدان قائم کیا جائے گا نا، ہمارے لوگ اسکولوں میں تو بچے کو پڑھاتے بہت ہیں، اسکولوں میں اگر 50,000 روپیہ سال میں دینا پڑے تو پڑھا لیتے ہیں، مگر دین کی تعلیم ہمارے بچوں کو سکھاتے نہیں ہے، قرآن کی تعلیم سکھاتے نہیں ہے۔ جب میدان قیامت قائم کیا جائے گا، میرے مصطفیٰ فرمائیں گے اے میرے ابو بکر صدیق تم بھی شفاعت کرو۔ ابو بکر صدیق اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے کر کے جائیں گے، عمر فاروق اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے کر کے جائیں گے، عثمان غنی اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے کر کے جائیں گے، مولا علی کے دیوانے جو ہے مولا علی اپنے دیوانوں کو جنت میں لے کر کے جائیں گے، امام اعظم کے چاہنے والے امام اعظم اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے کر کے جائیں گے، امام شافعی اپنے ماننے والوں کو جنت میں لے کر کے جائیں گے، امام حنبل اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے کر کے جائیں گے، سارے امام اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے کر کے جائیں گے، غوث پاک اپنے مریدوں کو جنت میں لے کر کے جائیں گے، اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے کر کے جائیں گے، خواجہ غریب نواز اپنے دیوانوں کو جنت میں لے کر کے جائیں گے، اعلیٰ حضرت کے جو چاہنے والے ہیں اعلیٰ حضرت اپنے گنہگار مریدوں کو جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ یہی تک محدود نہیں اور یہی تک محدود نہیں بلکہ اللہ فرمائے گا اے میرے بندو جس حاجی کا اللہ نے حج قبول کیا
हाजी अपने खानदानों को जन्नत में लेकर के जाएंगे, आलिम अपने खानदानों को बेशुमार जन्नत में लेकर के जाएंगे, हाफिज कुरान अपने खानदान के लोगों को जन्नत में लेकर के जाएंगे। यही तक महदूद नहीं, बल्कि हाफिजों के माँ बाप के सर पे नूर के ताज रख दिया जाएगा और उस ताज से पूरा मैदाने कयामत उजाला हो जाएगा। लोग अर्ज करेंगे, परवरदिगार ये कौन इंसान है जिसके चेहरे की रोशनी से पूरा मैदाने कयामत उजाला हो गया है? ऐ परवरदिगार ये कौन है? फरिश्ते अर्ज करेंगे, ऐ लोगों सुनो, इन्होंने दुनिया में अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया था, उसका आज इनाम मिल रहा है। लोग अर्ज करेंगे, लोग तमन्ना करेंगे कि काश मैं भी अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाता, मैं भी अपने बच्चे को आलिम दीन बनाता, मैं भी दीन की तालीम अपने बच्चों को सिखाता। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, कम से कम इतना तो तालीम जरूर सिखाएं ताकि जो दीन के अहकाम हो वो मालूम अपने बच्चे को हो जाए, दीन के जरूरियात हो वो मालूम हो जाए, कुरान अच्छे तरीके से पढ़ना सीख जाए। हजरात मोहतरम, अल्लाह के बहुत सारे दुनिया में वली आए और आने के बाद ये दुनिया कमाने के लिए नहीं, ये दुनिया के चक्कर में नहीं। हजरात मोहतरम, मैं किसके बारे में पहले बता रहा था? ख्वाजा गरीब नवाज और कुतुबुद्दीन बख्तियार के बारे में बता रहा था। यही तक महदूद नहीं, मैं और भी आपको बताता चलूं। अल्लाह को बस इतने टाइम में बस खास बातें आप तक मैं पहुंचा दूंगा, उसके बाद रुखसत हो जाऊंगा। और एक वाकया आप सुन लीजिए, ये तो कोई मशहूर वाकया नहीं है, बस नसीहत के लिए काफी है। दो भाई सफर कर रहे थे, सफर करते करते एक भाई का इंतकाल हो गया, एक भाई जिंदा है, एक भाई का इंतकाल हो गया। अब एक भाई सफर में है, जंगल का इलाका है, कोई बयाबान में कोई इंसान नहीं, वो इंसान कैसे मदद करे, कैसे मिट्टी दे, कैसे दफन करे, कैसे कफन पहनाए, वो इंसान चिंता में है। अफसोस कर रहा है कि कोई हो तो मेरे भाई को दफन कर दे, कोई हो तो मेरे भाई की नमाज जनाजा पढ़ लिया जाए। देख रहा है कि 30 आदमी आ रहा है। क्या देख रहा है? 30 आदमी आ रहा है। नसीहत के लिए ये काफी है। देखा कि 30 आदमी आ रहा है, दिल में सोचा कि मेरे भाई तो इंतकाल हो गए हैं, कि 30 आदमी को लेकर के मेरे भाई की नमाज जनाजा पढ़ लिया जाएगा और दफन कर दिया जाए। जब 30 करीब आए ना, कहा कि दिखाओ तेरे भाई का चेहरा दिखाओ। जब चेहरा दिखाया गया तो 30 ने 30 लात मार करके चले। कितने लात मार करके? 30 ने 30 लात मार करके चले गए। इन्होंने समझ में नहीं पाया कि बात क्या है, आखिर वजह क्या है। इन लोगों ने मेरे भाई को लात मारा तो क्यों मारा, आखिर वजह क्या है? हजरात मोहतरम, वो चले गए। उसके बाद फिर इंतजार करता रहा, देखा कि 8 आदमी आ रहा है। जब सोचा कि ये 8 आदमी आ रहा है तो इन 8 को लेकर के मेरे भाई को दफना दूंगा। जब वो 8 आदमी करीब आए ना, करीब आने के बाद कहा कि तेरे भाई का चेहरा दिखाओ, हुआ क्या है? कहा कि सफर में आए थे हम लोग 2 भाई, एक भाई का इंतकाल हो गया। कहा कि चेहरा दिखाओ। जब चेहरा दिखाया गया तो 8 ने फिर लात मार करके चले गए। इनके दिल में तो रंज हुआ, तकलीफ हुई, परेशान हो गए। फिर किसी का इंतजार करने लगा। हजरात मोहतरम, फिर इंतजार करते करते देख रहा है कि 5 आदमी आ रहा है। उन्होंने सोचा कि इस 5 आदमी को लेकर के अपने भाई को दफना दूंगा। जब वो सारे 5 आदमी करीब आए तो बोला कि क्या हुआ भाई? उन्होंने कहा कि मैं सफर में आया था, हम लोग 2 भाई आए थे, मगर एक भाई का इंतकाल हो गया। वो 5 आदमी कहने लगे तेरे भाई का चेहरा दिखाओ, तेरे भाई का चेहरा दिखाओ। जब चेहरा दिखाया तो 5 ने भी लात मार करके चले। उसके बाद इनका दिल में तो तकलीफ हुई, परेशान हो गए। आखिरकार करे क्या, अकेले हैं। आखिरकार फिर इंतजार करता रहा तो देख रहा है कि 2 आदमी आ रहा है। जब 2 आदमी आ रहा है, करीब में आया, वो इंसान कहने लगा भाई मैं सफर में आया था, मेरे भाई का इंतकाल हो गया है, मेरे भाई का इंतकाल हो गया है। तुम दोनों अगर मेरी मदद कर दो तो कुछ काम बन जाए। मेरे भाई की नमाज जनाजा पढ़ना है, दफन करना है। वो इंसान दोनों कहने लगे तेरे भाई का चेहरा दिखाओ। जब चेहरा दिखाया तो दोनों भी लात मार करके चले गए। इनके दिल में तकलीफ हुई। आखिरकार इन्होंने दिल में सोचा कि इस बार जो आएगा उसको छोड़ूंगा नहीं, उससे लड़ाई कर लूंगा।
लूंगा, उससे लड़ लूंगा, लड़ना पड़े तो लड़ लूंगा, लड़ाई करना पड़े तो लड़ाई कर लूंगा। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद देख रहा है कि एक आदमी आ रहा है। जब करीब में आया ना, आने के बाद कहा क्या हुआ? कहा कि हम लोग सफर में आए थे और मेरे भाई का इंतकाल हो गया है, मिट्टी देने वाला यहाँ जंगली इलाका है, कोई इंसान नहीं है, दफन करने वाला भी कोई नहीं है। कहा कि तेरे भाई का चेहरा दिखाओ। जब चेहरा दिखाया तो कहा चलो दफन कर देते हैं। जनाजा पढ़ करके दुआ कर करके उनको दफन कर दिया। उन्होंने पूछा कि आखिर बात क्या है, तुमने मेरे भाई का दफन कर दिया, तुमसे पहले 30 आदमी आया था मगर मेरे भाई का चेहरा देखा और लात मार करके चला गया। उसके बाद 8 आदमी आया, वो 8 लात मार करके चला गया। 5 आदमी आया, 5 लात मार करके चला गया। और उसके बाद 2 आदमी आया, दोनों लात मार करके चला गया। तुम आए तो मेरे भाई का दफन कर दिए, आखिर बात क्या है? वो इंसान जो एक थे ना, वो कहने लगे वो 30 जो आदमी आए थे वो कोई 30 आदमी नहीं थे, बल्कि 30 रमजान के रोजे थे। तेरे भाई ने जिंदगी में कभी रोजा नहीं रखा है, इसलिए 30 रोजे लात मारकर तेरे भाई को चले गए। वो जो 8 आए थे ना, वो जुम्मे की नमाज थी। तेरे भाई ने कभी जुम्मा पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं आया था, इसलिए वो जुम्मे की नमाज तेरे भाई को लात मार करके चले गए। वो 5 जो आए थे वो 5 वक्त की नमाज थी। तेरे भाई ने कभी 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ा है, इसलिए वो 5 वक्त की नमाज तेरे भाई को लात मार करके चले गए। और वो 2 जो थे ना, वो 2 ईद और बकरीद की नमाज थी। तेरे भाई ने जिंदगी में कभी ईद और बकरीद की नमाज भी पढ़ने नहीं आया था। और मैं जो हूँ ना, ये मैं कौन हूँ मालूम है? एक अल्लाह उसके रसूल की महफिल सजी थी, वहां पर तेरे भाई एक दिन उस महफिल में बैठा था, जिसके सदके में इंसान की शक्ल में तेरे भाई को दफन करने के लिए आया। हज़रात मोहतरम, पता चलता है कुछ वाक़ियात ऐसे होते हैं ताकि लोग इबरत हासिल कर लें, ताकि लोग नसीहत हासिल कर लें, ताकि लोग दुनिया की बातों को देख करके और दुनिया के माहौल को देख करके सुधर जाए। इन वाक़ियात को देखने का मतलब ये है, इन वाक़ियात को सुनने का मतलब ये है कि हम अगर दूसरे रास्ते में भटक रहे हैं तो मस्जिद में आने की कोशिश करें। हज़रात मोहतरम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वो अल्लाह के वली थे, ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद खास थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अल्लाह के वली थे। उन्होंने नसीहत की थी कि मैं जब मर जाऊं, मैं जब इंतकाल हो जाऊं तो मेरे नमाज जनाजा वो इंसान पढ़ाएगा जिसके अंदर 3 शर्त मौजूद हो, जिसके अंदर 3 शर्त मौजूद हो। कौन कहते हैं? ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद खास कुतुबुद्दीन बख्तियार कहते हैं मेरी नमाज जनाजा वो इंसान पढ़ाएगा जिसके अंदर 3 शर्त मौजूद हो। कहते हुजूर शर्त क्या है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार कहते हैं वो इंसान पढ़ाएगा जो असर की सुन्नते गैर मुअक्कदा कभी तर्क ना की हो, वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। अल्लाहु अकबर। फिर दूसरी शर्त लगाते हैं कि वो इंसान मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा जो कभी बगैर वुजू से आसमान की तरफ ना देखा हो, वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। और तीसरी शर्त लगाते हैं कि मेरी नमाज जनाजा वो इंसान पढ़ाएगा जिसकी फर्ज नमाज जमात कभी जिंदगी में तर्क ना हुई हो। ये 3 शर्त जिनके अंदर मौजूद हो वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। वो कौन कहते हैं? ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार कहते हैं मेरी नमाज जनाजा वो इंसान पढ़ाएगा जिसके अंदर ये 3 शर्त मौजूद हो। जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इस दुनिया से रुखसत हो गए, इंतकाल हो गए, नमाज जनाजा के लिए सब बांधे हुए हैं। हजारों मुफ्तियान इकराम मौजूद है, हजारों उलमा इकराम मौजूद है, हजारों हुफ्फाज इकराम मौजूद है, हजारों अल्लाह के वली नेक बंदे मौजूद है, मगर आगे कोई नहीं बढ़ रहा है नमाज पढ़ाने के लिए, आगे कोई नहीं बढ़ रहा है। ये 3 शर्त जिनके अंदर मौजूद हो वो आगे बढ़ेगा। अब ये 3 शर्त अंदर होना मामूली सी बात नहीं है। कहते हैं कि जब कभी बगैर वुजू से आसमान की तरफ ना देखा वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। जो सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़े तो सवाब है, नहीं पढ़े तो कोई गुनाह नहीं है, मगर कहते हैं जो जिंदगी में कभी तर्क ना की हो और फर्ज नमाज जमात कभी तर्क ना की हो वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। हिंदुस्तान का एक बादशाह आगे बढ़ते हैं, नमाज जनाजा पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद पूछते हैं मुरीद हुजूर क्या आपके अंदर तीनों शर्त मौजूद है?
कहते हैं हाँ मेरे अंदर तीनों शर्त मौजूद है, मैंने कभी बगैर वजू से आसमान की तरफ नहीं देखा है, मेरी सुन्नतें गैर मुअक्कदा कभी कज़ा नहीं हुई है, और जमात मेरी कभी तर्क नहीं हुई है। नाम है सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, वो हिंदुस्तान का बादशाह। आगे बढ़ते हैं और नमाज जनाजा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अलैहि रहमा का पढ़ा। अल्लाह, अब मैं ये बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का बादशाह है सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, बादशाह होने के बाद भी एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं, जिंदगी में एक वक्त जमात छोड़े नहीं, बगैर वजू से आसमान की तरफ देखे नहीं। ये बादशाह पूरे हिंदुस्तान को संभाल रहे हैं। उस वक्त हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया कहा जाता था, उस वक्त हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया कहा जाता था। ऐसे बादशाह थे हजरात मोहतरम। मैं और आपको बताता चलूं, हजरात हमको अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह ने हमें पैदा किया है तो किस लिए पैदा किया है? बंदगी के लिए पैदा किया है, बंदगी करें हम, अल्लाह ने पैदा किया है। मैं आपको बता देता हूँ, एक इल्लते फाइली है। इल्लते फाइली क्या है? ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, इसका बनाने वाले जो है उसको इल्लते फाइली कहा जाता है। यहाँ स्कूल में पढ़ने वाले भी लोग हैं और कुछ दीन की खिदमत करने वाले भी लोग हैं, ताकि मैं उस बातों को यहाँ पर समझा दूं। इल्लत फाइली क्या है? इसका बनाने वाला जो है उसको इल्लत फाइली कहा जाता है। जो मोबाइल को बनाया है वो इल्लत फाइली, जो बनाया है उसको इल्लत फाइली कहा जाता है। इसको इल्लत मादी है। इसमें इल्लत मादी क्या है? किस चीज से मोबाइल को बनाया गया है? तो आप कहेंगे लोहे से बनाया गया है, तांबा से बनाया गया है, प्लास्टिक वगैरह से औजारों से बनाया गया है। इसको बनाने वालों ने बनाया है, उसको इल्लत फाइली कहते हैं। जिस चीज से ये बना है उसको इल्लत मादी कहते हैं, और इल्लत सूरी कहते हैं कि ये मोबाइल देखने में कैसा लगता है। अगर मैं आपसे सवाल करूं तो आप कहेंगे ये देखने में अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। बनाने वालों ने बनाया है, बहुत सारे सामान से बनाया है, देखने में खूबसूरत लगता है, मगर इल्लते गाई क्या है? बनाने का मकसद क्या है? आप कहेंगे कि यहाँ बोली जाए तो ये बात बंगाल तक पहुंच जाए, यहाँ बोली जाए तो ये बात सऊदी अरब तक पहुंच जाए, दुनिया के कोने कोने में ये बात पहुंच जाए, यहाँ देखी जाए तो यहाँ के लोगों को बहुत दूर तक देखा जाए, यानी घंटों के बातों को, सालों के कामों को मिनटों में कर दिया जाए। इसलिए इसको बनाया गया है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, जिस काम के लिए इसको बनाया गया है, अगर काम ना करे तो इसे क्या किया जाएगा? फेंक दिया जाएगा। बनाने वालों ने बनाया है, औजार से बनाया है और खूबसूरत बनाया है, और बनाने का एक मकसद है ताकि बात की जाए, कि कोई दूर में रहे तो उसको बुला लिया जाए। ये सारे चीजों को मकसद में जमा करके इसको बनाया है, मगर ये काम ना करे तो आपका इंसाफ यही होगा कि इसको फेंक दिया जाएगा। अब आप इधर कुरान में आइए, कुरान फरमाता है हुवल्लाहुल खालिक, अल्लाह ही सारी कायनात को पैदा करने वाला है, अल्लाह ही सारी कायनात को पैदा किया है। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है। पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है। इल्लत फाइली कौन है? अल्लाह है। इंसान को किस चीज से पैदा किया है? आइए हम कुरान से पूछते हैं, तो कुरान फरमाता है खलकल इंसान मिन सलसालिन, इंसान को एक बजती हुई मिट्टी से पैदा किया है। यानी इल्लत मादी ये है कि इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया है। इंसान को बनाने वाला परवरदिगार है, बनाया है मिट्टी से, मगर इसका इल्लत सूरी क्या है? इंसान देखने में कैसा लगता है? आइए हम कुरान से पूछते हैं, तो कुरान फरमाता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, इंसान को मैंने बेहतरीन शक्ल और सूरत में पैदा किया है। कुरान फरमा रहा है बनाने वाले परवरदिगार है, इंसान को मिट्टी से बनाया है खूबसूरत, मगर बनाया है किस मकसद के लिए? कुरान से पूछते हैं, कुरान फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। सुभान अल्लाह। आप तो मोबाइल को फेंक देंगे, मोबाइल काम ना करे जिस काम के लिए बनाया गया था। तो अब इंसान को जिस काम के लिए बनाया गया है और इंसान अगर वो काम ना करे तो इंसान को भी जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। जब आप खुद इंसाफ करेंगे कि मोबाइल काम ना करे, जिस काम के लिए तैयार किया गया है मोबाइल को,
वो काम ना करे तो वो मोबाइल को फेंक दिया जाएगा, गुजरी के दुकान में डाल दिया जाएगा। इसी तरीके से अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है, मिट्टी से पैदा किया है और दुनिया के सारे मखलूक से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया है और पैदा किया है बंदगी के लिए। ये इंसान अगर बंदगी ना करे तो इसे भी जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। हज़रात मोहतरम, हम इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है बंदगी के लिए, इबादत के लिए, ताकि हम बंदगी करें, आखिरत को सुधारें। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को सिर्फ इबादत के लिए पैदा फरमाया है। हज़रत अली कब्रिस्तान में जाते थे ना, हज़रत अली पूछते थे, ऐ कब्र वालों तेरा हाल क्या है? कब्र वाले बोलते थे, अली हमारे हाल तो बुरा है, हमारे हालत बहुत खराब है, हमारे घर वालों का क्या हाल है? कब्र वाले पूछते थे, अली हमारी तो हालत खराब है, ये बताओ कि हमारे घर वालों का हाल क्या है? तो अली बोलते थे, ऐ लोगों तुम्हारे दोस्त कोई दूसरे दोस्त बना लिए हैं, तुम्हारी बीवियां दूसरी शादी कर ली है, तुम्हारे मालों को तुम्हारे औलाद कब्जा कर लिए हैं, तुम्हें याद भी लोग नहीं करते हैं, तुम्हें याद भी लोग नहीं करते हैं। हज़रात मोहतरम, हमें चाहिए कि इस दुनिया से हमें छोड़ करके जाना है, हमें इस दुनिया में हमेशा रहना नहीं है, इस दुनिया को हमें छोड़ करके जाना है। हज़रात मोहतरम, मैं आपको दो चार बातें और बता दूं, यही तक महदूद नहीं। गौसे पाक जब किसी रास्ते से गुजरते थे तो कोई घर बनाता तो पूछते थे, बेटा क्या कर रहा है? लोग कहते थे, हुजूर घर बना रहा हूँ, हुजूर घर बना रहा हूँ। तो गौसे पाक कहते थे, बेटा रहेगा कोई और हिसाब तुझे देना पड़ेगा, बेटा रहेगा कोई और हिसाब तुझे देना पड़ेगा। हमारा भी यही हाल है, हम तो बच्चे की जिंदगी बनाने में लगे हुए हैं, बच्चे की जिंदगी बना रहे हैं, मगर अपने हाल का पता नहीं है, अपना क्या कर रहे हैं ये मालूम नहीं है। हज़रात मोहतरम, गौसे पाक मैं बताते चलूं, ये 11वीं का महीना है, दो चार बातें गौसे पाक के ताल्लुक से मैं आपको बता दूं। गौसे पाक 18 साल तक अपने जिलान में इल्म दीन हासिल करते रहे। 18 साल तक इल्म दीन हासिल करने के बाद फिर बगदाद का इरादा फरमाया, बगदाद जाने का इरादा फरमाया। माँ ने कहा, बेटा चले जाओ इल्म दीन हासिल करने के लिए। जब बगदाद का इरादा फरमाया तो अपने आज हमारे माँ बाप कैसे होते हैं, मगर पहले के माँ बाप कैसे होते हैं? माँ बाप अगर नेक हो तो औलाद भी नेक होंगे, माँ अगर नमाजी हो तो बेटा हाफिज कुरान होगा, माँ अगर कुरान की तिलावत करने वाली हो तो बेटा आलिम दीन होगा। माँ के पेट में बच्चा रहता है तो माँ तो टीवी देख रही है तो बेटा भी तो टीवी देखने वाला ना होगा, बेटा भी तो जुआ खेलने वाला का ना होगा। माँ अगर हम क्या कहते हैं कि बेटा 8 साल 10 साल का हो तब नमाज सीखेगा। बच्चे माँ के पेट में हो जो अल्लाह के वली होते थे तो माँ के पेट में होते थे, माँ अल्लाह की इबादत करती थी, बच्चा नेक बन जाता था। हज़रात मोहतरम, गौसे पाक 18 साल की उम्र में जिलान से बगदाद जाने का इरादा फरमाया और इरादा फरमाया तो गौसे पाक के 2 भाई थे, माँ के पास 80 दिरहम थे, 40-40 दिरहम को 2 जगह कर दिए और गौसे पाक के कमर में वो दिरहम को सिल दिए। सिलने के बाद गौसे पाक इरादा क्या किए, इल्म दीन हासिल करने के लिए जिलान के सरजमीन से बगदाद के सरजमीन से निकलने के बाद काफिला भी निकले। काफिला निकलने के बाद गौसे आजम पीछे निकल रहे हैं, गौसे आजम पीछे निकल रहे हैं। डाकुओं ने काफिले को लूट लिया, काफिले को लूटता रहा। गौसे आजम एक तरफ खड़े होकर के सारे मामले को देख रहे थे। एक डाकू ने गौसे पाक के पास आया और कहने लगा, ए बच्चा तेरे पास कोई सामान है क्या? वो कहते हैं मेरे पास 40 दिरहम है। वो डाकुओं ने मजाक समझ करके चला गया। दूसरा डाकू आया और कहने लगा, ए बच्चा तेरे पास कुछ है क्या? गौसे पाक कहते मेरे पास 40 दिरहम है। डाकुओं ने मजाक समझा, अपने हेड यानी मालिक को जाकर के कहा, डाकुओं के सरदार को जाकर के कहा कि ये बच्चा कह रहा है कि मेरे पास 40 दिरहम है, ये बच्चा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है क्या पता। डाकुओं के सरदार ने कहा उस बच्चे को बुलाओ। जब डाकुओं के सरदार ने बुलाया, गौसे पाक से पूछा, ऐ बच्चा तेरे पास क्या है? गौसे पाक कहते मेरे पास 40 दिरहम है, मेरे पास 40 दिरहम है। कहने लगे डाकुओं के सरदार ने, कहाँ है? कहा कि ये कमर के साइड में सिया हुआ है,
जब जांच किया गया, जब तलाश की गई तो वो निकाला गया, हकीकत में 40 दिरहम थे। डाकुओं ने कहा, अरे बच्चा, जिस तरीके से अच्छे तरीके से वो सेटिंग किया हुआ था, वो पैक किया हुआ था, अगर तुम झूठ बोल देते तो हम तो कोई पता नहीं करने पाते, हमें मालूम तक नहीं होता, तूने झूठ क्यों नहीं बोला? गौसे पाक ने दुनिया वालों को एक पैगाम दिया, दुनिया वालों को एक पैगाम दिया कि ऐ लोगों, दुनिया में जितनी भी तकलीफ हो जाए, दुनिया में जितनी भी परेशानी हो जाए, झूठ से अपने जुबान को नापाक ना करना। गौसे पाक ने कहा, ऐ डाको, मेरे माँ ने नसीहत की थी कि बेटा, जितनी भी तकलीफ हो जाए, जितनी भी परेशानी हो जाए, जुबान को झूठ से नापाक मत करना, इसलिए मैंने झूठ नहीं बोला। अल्लाह अकबर। गौसे पाक का तेवर कह रहा था, ऐ डाको, ये तो सोना कोई दूर की बात है, ये 40 दिरहम कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि गौसे पाक का तेवर कह रहा था, ये दुनिया में जितने पहाड़ हैं सबको सोने में चेंज कर दिया जाए, सारे रुए जमीन को सोने में चेंज कर दिया जाए, और कहा जाए गौसे पाक एक झूठ बोल दो, सारे सोने को दे दिया जाएगा। गौसे पाक का तेवर कह रहा था, सारे सोने को मैं थूक दूंगा, अपने जुबान को झूठ से आलूदा नहीं। जब ये मामले को देखे ना, जब ये मामले को देखे डाकुओं ने, तो ईमान लेकर के आया, कलमा पढ़ा और छोड़ दिया डाकोगिरी करना, लोगों का छीनना छोड़ दिया। उसके बाद डाकुओं ने तो ईमान लाया, लाने के बाद जितने चाहने वाले थे डाकुओं की, जितने चाहने वाले थे, जितने मानने वाले थे, सारे के सारे वो गौसे पाक के नक्शे कदम में आए। उलमा बयान करते हैं कि सारे के सारे गौसे पाक के जितने भी मुरीद थे, सारे के सारे वली थे। आज के जो पीर साहब होते हैं, सुनिए, आज जो पीर साहब होते हैं, जितने मुरीद है उससे ज्यादा अब साउथ में आपके पीर पाएंगे। मैं पीर के जो चप्पल होते हैं, जो कदमों के धूल होते हैं, वो हमारे आंखों के सुरमा है। जो असली पीर है वो उनके कदमों के धूल हमारे आंखों के सुरमा है। मगर मैं नकली पीर की बात करता हूँ। आज के पीर क्या है? पीर बना हुआ है, नमाज तक नहीं पढ़ता है, चेहरे पे दाढ़ी तक नहीं है, मगर पीर बना हुआ है। मगर गौसे पाक को देखो, उस जमाने में के पीर क्या करते थे? गौसे पाक अपने पीर मुरीद को बनाते थे तो उनको वली बना देते थे। ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीद बनाते थे, उनको वली बना देते थे। मगर आज के पीर तो ऐसे हैं, हजरात मोहतरम, साउथ का हाल तो ये हो गया है, कहीं नीम का दरख्त देख लिया तो वहाँ एक कपड़ा लपट लिया, अब वहाँ तवाफ भी कर रहा है, वहाँ जाके फातिया भी कर रहा है। फातिया तो आप अपने घरों में भी कर सकते हैं, किसी नीम के दरख्त में या किसी मजार पे चक्कर लगाना जायज नहीं है। काबे के अलावा कहीं पर भी तवाफ करना जायज नहीं है, बल्कि हराम है, हराम है, हराम। कहीं मजार पे कोई भी मजार हो, चक्कर लगाना जायज नहीं है, तवाफ करना जायज नहीं है। लोग तो मैंने देखा अपनी आंखों से कि नीम का दरख्त है, उस पे एक कपड़ा लपेट दिए, उस पे भी चक्कर लगा रहे हैं। इस बातों को सुन लीजिए, क्या सही है क्या गलत है। हजरात मोहतरम, आज का हाल ये है कि उर्स को लोगों ने मेला बना दिया है। मेरे आला हजरत से पूछा गया हुजूर, मजारों पे चादर चढ़ा सकते हैं? आला हजरत ने क्या फरमाया, सुन लीजिए, काम आने वाली बात है। आला हजरत से पूछा गया, हुजूर मजारों पे क्या चादर चढ़ा सकते हैं? मेरे आला हजरत ने फरमाया, हाँ, मजारों पे चादर चढ़ा सकते हैं, जब एक चादर पुरानी हो जाए तब दूसरी चादर चढ़ाया जाए, ताकि ये तायुन हो जाए, ताकि दोनों में फैसला हो जाए कि ये आम लोगों की कब्र है, ये अल्लाह के वली की कब्र है। एक चादर पुरानी हो जाए तब दूसरी चादर चढ़ाया जाए। आज तो कमेटी का हाल ये है कि दुकान से लाकर के इधर से चढ़ाते हैं, फिर उधर से घुमा करके दुकान में लेकर के जाते हैं, इधर से लाते हैं, कारोबार बना दिए। फिर आला हजरत से पूछा गया, हुजूर हमारे जो असलाफ है उन्होंने तरीका को बताया है, मगर हमारे लोग उसको इस तरीके से बढ़ा करके उस मुस्तहब को फर्ज के मकाम पर ला करके छोड़ दिया है, और फर्ज को हम भूल बैठे हैं। आला हजरत से पूछा गया, हुजूर क्या मजार पे सजदा कर सकते हैं? तो आला हजरत ने फरमाया, ताअब्बुदी सजदा करना, कोई इंसान अगर इबादत समझ करके सजदा कर रहा है तो हराम है। इबादत समझ करके सजदा कर रहा है तो कुफ्र हो जाएगा, इंसान काफिर हो जाएगा। कोई इंसान अगर ताअब्बुदी सजदा कर रहा है, यानी इबादत समझ करके, खुदा समझ करके सजदा कर रहा है,
ताअब्बुदी सजदा कर रहा है तो काफिर हो जाएगा, और अगर ताज़ीमी सजदा कर रहा है कि बड़ा आदमी है इसलिए मैं सजदा कर रहा हूँ, तो वो भी हराम है। किसी तरीके से सजदा करना जायज नहीं है। फिर आला हज़रत से पूछा गया, हुजूर क्या मज़ारों पे, कब्रों पे अगरबत्ती जला सकते हैं? अगरबत्ती जला सकते हैं? तो मेरे आला हज़रत ने फरमाया नहीं, अगरबत्ती जला नहीं सकते हैं। कब्र पे अगरबत्ती जलाना मना है, इसलिए कि उसमें आग जलाई जाती है, आग जलती है, और आग जहन्नम की अलामत है, जहन्नम की तपिश में से है। जब कब्र में आग जलाई जाए तो मुर्दे को तकलीफ होती है। मेरे आला हज़रत ने ये पैगाम दिया, मगर हमने अपने मन घड़त बातों से आज हमारा हाल, जो मुस्तहब चीजों को हमने तो बहुत करते हैं, मुस्तहब चीजों को दर्जा बहुत दे देते हैं, मगर हमने फर्ज को भूल गया है। हमारा हाल ये है कि हम सोते हैं रात के 2 बजे मोबाइल चलाते चलाते, उठते हैं दिन के 10 बजे। अब बाप जो है, बाप जब 10 बजे दिन में उठेगा, माँ जब 10 बजे दिन में उठेगी, तो बेटा क्या नमाजी बनेगा? जब माँ ही उठ रही है 10 बजे, बाप 10 बजे उठ रहा है, भाई